everyone, you all are welcome in class 11th chemistry classes. We have been studying the properties of hydrogen, and then in the previous video we have started about hydrogen, where we have discussed or we have learnt the preparation of hydrogen, and then we have moved about properties of hydrogen. In the previous video we have studied physical properties of water and other properties of water. Today we are going to start with the chemical properties of water. So let us start our video. Physical properties of water. The first property is it is liquid, colorless, odorless and tasteless. मीन्स ना तो कोई कलर होता है, अगर वो प्योर वाटर है तो कोई स्मेल नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं होगा. Taste or odor of water is due to presence of the impurities in it. Due to its high solubility, it is considered as universal solvent. ये मैंने कल पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. And it is a polar solvent क्योंकि water एक polar compound है. It contains positive on hydrogen atom and negative on oxygen atom charges. Now we'll discuss chemical properties of water. The first property is that it is highly stable towards heat. यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकअप नहीं होता है कितना भी उसको हीट करें. 2H2O will break up in 2H2 and O2 at 1500 Kelvin. So you can see that water is a highly thermally stable compound. हम वाटर को H2 और O2 में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं only by the process of electrolysis in presence of either an acid or a base. लेकिन हम चाहें कि हीट करके उसको ब्रेक कर दें H2 और O2 में तो वो पॉसिबल नहीं है आसानी से. Second property is about its nature, that is amphoteric in nature. It means water behaves as a acid as well as base with different compounds. Like when water combines with HCl, where HCl is an acid and water acts as a base, forms hydronium ion and chloride ion. Whereas when water combines with ammonia, where ammonia acts as base and water as an acid, it forms ammonium ion and hydroxide ion. The concept of behaving water as an acid and base is here explained on the basis of an acid-base theory, which is called as Bronsted-Lowry concept of acid and base. This Bronsted-Lowry concept of acid-base we will be discussing in detail in chapter Ionic Equilibrium, where we will discuss three types of concepts of acid and base. 1. Arrhenius concept, 2. Bronsted-Lowry concept, and 3rd Lewis acid-base concept. So on the basis of Bronsted-Lowry, the substances which donates H plus ion are acid and which accepts H plus ion are known as base. तो यहाँ पर वाटर एसिड से H plus ion एक्सेप्ट करता है तो हो गया वाटर बेस, और यहाँ पर वाटर H plus ion अमोनिया को देता है तो हो गया एसिड. अगर हम अरेनियस कॉन्सेप्ट को देखें, और अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाटर न्यूट्रल होता है, उसका pH 7 है at 298 Kelvin. So water is a neutral compound towards litmus. ये रेड लिटमस को ब्लू नहीं करेगा और ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेगा. यानी कि प्योर वाटर में जो लिटमस का कलर होता है वो होता है पर्पल, ठीक है कि नहीं, या वायलेट, वही मेंटेन रहेगा. सो इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस ऑन द बेसिस ऑफ अरेनियस कॉन्सेप्ट. इट नाइदर प्रोड्यूसेस H plus ion nor produces OH ion when it is 100% pure water. Third property का फर्स्ट पार्ट है water act as an oxidizing agent. Water can be reduced. भाई जब खुद रिड्यूस होगा तभी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो water can be reduced to hydrogen by reacting with highly electropositive metals. Sodium reacts with water, produces NaOH and releases hydrogen gas. और आयनिक इक्वेशन लेके तो water gains 2 electron. Gain of electron is reduction.
तो यहाँ पे वाटर का रिडक्शन हो रहा है, तो वाटर गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोड्यूसेस OH ions and hydrogen gases released. So water act as oxidizing agent. Second part, as a good reducing agent. Water can also be oxidized as, भाई जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तभी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी. तो वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू O2 and produces H plus ion and loses 4 electron. Means loss of electron is oxidation. तो जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो वाटर रिएक्ट विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक halogens, fluorine, chlorine, bromine and iodine. तो fluorine react with water, forms HF and releases oxygen gas. जब वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और जब वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का मतलब है जिसमें वाटर दूसरे कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस कराता है. हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकअप होता है H और OH में. OH किसी से कंबाइन करेगा और H किसी और से कंबाइन करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. बहुत पॉपुलर रिएक्शंस होती हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में यूज होती हैं. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस होगी. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरस एसिड, यहाँ पर SO2 की हाइड्रोलिसिस होगी. PbR3 कंबाइंस विथ वाटर बनाता है फॉस्फोरस एसिड H3PO3, फॉस्फोरस एसिड प्लस HBr. कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूसेस एसिटाइलिन गैस, तो कैल्शियम कार्बाइड की यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाती है. कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 reacts with water to form calcium hydroxide and releases hydrogen gas. Magnesium nitride Mg3N2 react with water, produces magnesium hydroxide and releases ammonia gas. तो यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है. फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, हाइड्रेशन रिएक्शन. हाइड्रेशन का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल किसी एक स्पीशीज के साथ में जाके जुड़ जाए, पूरा मॉलिक्यूल वाटर का जुड़ जाए, तो उसे बोलते हैं हाइड्रेशन. निकल 2+ रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म निकल का कॉम्प्लेक्स विथ वाटर, इसको बोलते हैं हेक्सा एक्वा निकल 2 आयन. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, इसमें वाटर पूरा का पूरा निकल 2+ से कंबाइन कर लेता है. ठीक है, ये डार्क ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है. वाटर मॉलिक्यूल्स मे बी हाइड्रोजन बॉन्डेड टू एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स विच कंटेन्स एनाइड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बार फिर बता रहा हूँ. वाटर मॉलिक्यूल मे बी हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बताया था, ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है. हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम्स कंटेनिंग एनाइंस, मतलब जिन एनाइंस में ऑक्सीजन एटम होता है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है. फॉर एग्जांपल CuSO4, इसका एनाइन कौन है? सल्फेट. सल्फेट के साथ जो ऑक्सीजन एटम है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ जाता है. तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, यानी बिना वाटर मॉलिक्यूल के. कंबाइंस विथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो बनाता है पेंटाहाइड्रेट क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O. इसको ही हम ऐसे नए तरीके से लिख सकते हैं CuH2O का होल 5SO4. इसका नाम होता है पेंटा एक्वा कॉपर 2 सल्फेट. ये डार्क ब्लू कलर का होता है. ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है. ये होता है वाइट कलर का और ये होता है ब्लू कलर का. वाटर मॉलिक्यूल्स may occupy the interstitial sites or voids in the crystal lattice of many compounds.
बहुत से कंपाउंड्स के जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिनको हमने नाम दिया है इंटरस्टिशियल साइट्स या बोल सकते हैं वॉइड्स। अगर उन वॉइड्स का साइज इंटरस्टिशियल साइट्स का साइज वाटर मॉलिक्यूल के कंपेरेबल है तो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ जाकर के ट्रैप हो जाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल BaCl2.2H2O। तो 3 केसेस हैं जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड से ऐड हो सकता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके, और तीसरा इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट होकर के। इसके साथ वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। हैवी वाटर बोलते हैं हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, जिसमें हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम हो, D2O। इसका दूसरा नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हैवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ड्यूटेरियम को हम हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं इसीलिए। ऑर्डिनरी वाटर जो होता है दैट कंटेन्स 1 पार्ट ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड आउट ऑफ 5000 पार्ट्स। ठीक है कि नहीं? यानी कि अगर 5000 लीटर पानी है तो 5000 लीटर पानी में से 1 लीटर पार्ट जो होगा वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस बहुत लॉन्ग टाइम तक करें तब जाकर के जो रेजिड्यू वाटर बचता है वो होता है हैवी वाटर, और बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, when water is electrolyzed then hydrogen gas is released or liberated at faster rate than D2 यानी कि ड्यूटेरियम से, and the remaining water becomes enriched in D2O। यानी कि जैसे 5000 लीटर हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती जाएगी, ठीक है कि नहीं? कैथोड पर होती जाएगी। जब पूरी हाइड्रोजन निकल जाएगी तो उसके बाद जो वाटर बचेगा वो होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, कैथोड पे हाइड्रोजन। तो स्पीड ऑफ गैस रिलीज्ड उसको मेजर करते हैं तो हाइड्रोजन की जो स्पीड है वो ड्यूटेरियम से ज़्यादा होती है। तो जब तक हाई स्पीड में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तब तक मानेंगे कि हाइड्रोजन यानी वाटर ही इलेक्ट्रोलाइज हो रही है, और जैसे ही थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि अब हैवी वाटर बचा हुआ है। अब हैवी वाटर की प्रॉपर्टीज़ जो वाटर से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। पहला, इट इज़ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड, जैसी वाटर की थी। द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एट्सेट्रा आर स्लाइटली हायर देन ऑर्डिनरी वाटर। द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ हैवी वाटर D2O इज स्लाइटली लोअर देन वाटर। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये आपके दिमाग में आएगी बात कि भाई ये क्या बवाल है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक पैरामीटर होता है, एक वैल्यू है जो ये डिसाइड करती है कि कोई सब्सटेंस उस लिक्विड में कितना सॉल्युबल है। जिन कंपाउंड्स का, जिन लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है उसमें कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी हाई होती है। इसको और एक तरीके से बता देता हूँ, ध्यान से समझें। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन इन वाटर, यानी कि नॉर्मल वाटर के मुकाबले हैवी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम होती है। एक बार फिर से मैं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझा देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्वेंट की वो कैपेबिलिटी जिसकी वजह से वो आयनिक कंपाउंड्स को अपने अपने आयंस में ब्रेकअप कर देता है, इसका मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शंस ऑफ हैवी वाटर आर स्लाइटली स्लोअर देन दोज ऑफ वाटर। स्लाइटली स्लोअर का मतलब है द स्पीड ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज कंपैरेटिवली स्लो देन इन ऑर्डिनरी वाटर। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन विथ मेटल, सोडियम react with D2O to form NaOD plus D2। H की जगह बस D लिख देना है। इसका नाम है सोडियम ड्यूटेरोक्साइड, DEUTEROXIDE।
reaction with metal oxides. Calcium oxide, lime, react with heavy water, forms calcium deuteroxide, CaOD whole twice. Reaction with non-metallic oxides like phosphorus pentaoxide, react with deuterium oxide, forms D3PO4. जैसे वो बनाता है ना H3PO4, वैसे बनाता है D3PO4. इसका नाम होता है ड्यूट्रो phosphoric acid. Sulfur trioxide react with D2O to form D2HO4 SO4. जैसे नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड होती है, यहाँ पर बन जाएगी है ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड. फिर है फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ कंपाउंड्स. कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ हैवी वाटर, फॉर्म्स CaOD का होल ट्वाइस प्लस C2D2. जैसे कि वाटर था तो C2H2 बनता था, यहाँ पर C2D2. इसका नाम है ड्यूट्रो एसिटाइलिन. एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विथ हैवी वाटर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ड्यूट्रोक्साइड प्लस CD4. CD4 उसकी तरह हो गया CH4 की तरह, तो इसको बोलेंगे ड्यूटेरो मीथेन. मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करें, मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराएं, तो MgOD का होल ट्वाइस प्लस ND3. NH3 का भाई बंधु हो गया ये. NH3 होता है अमोनिया, ये होगा ड्यूटेरो अमोनिया. One important note is heavy water is injurious to plants, to animals and human beings because it slow down the reaction rate. यानी हमारी बॉडी में जो पूरा फ्लूइड भरा होता है वो वाटर होता है, तो हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं या प्लांट्स के अंदर जो भी एक्टिविटी होती हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, वो सब वाटर एज ए सॉल्वेंट के बेस पर होती हैं. तो उनकी एक रेट डिफाइंड है, स्पीड डिफाइंड है. तो अगर हैवी वाटर होगा तो वो सारे प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है. इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स. लेकिन फिर भी हैवी वाटर के कुछ यूजेस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1, एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर. आपने पढ़ा होगा मॉडरेटर का काम होता है टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन. दूसरा है एज ट्रेसर कंपाउंड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कोई भी रिएक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है उसको स्टडी करने के काम आता है. और हैवी वाटर से हम ड्यूटेरियम अलग से निकाल सकते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम. फिर हम ड्यूटेरियम को आगे कहीं और दूसरी जगह यूज़ करते हैं. तो इसके साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ. अगली वीडियो में हम लोग हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे. ओके.